Good morning, students. How are you? Hope you are staying safe at your home. So, in the previous video session, we have discussed the first four principles of management. So, let's start with the fifth principle of management, that is unity of direction. So, according to principle of unity of direction, there should be one head and one plan. यानी कि एक यूनिट का एक ही हेड होना चाहिए और वो सारे उस तरफ ही डायरेक्ट होने चाहिए. So there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. So if we will follow this principle in the organization, the efficiency of the organization increases. यानी कि जो organization की efficiency है वो क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी और resources क्या है, कम से कम waste होंगे. Then difficulty in achieving the coordination. डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द कोऑर्डिनेशन. वो कहते हैं कि अगर अपन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, इफ वी विल नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अचीव द कोऑर्डिनेशन अमंग एवरीवन. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड, वन प्लान, एंड ऑल द एक्टिविटीज़ आर टू बी डायरेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. यानी कि जितनी भी एफर्ट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, दे शुड मूव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लान. Then come another principle, that is subordination of individual interest to general interest. वो कहते हैं कि one should consider the interest of the organization above everything. It means your individual objective should not supersede the organizational objective. It means you have to first think about the organization and then you will think about your individual interest. So if you will violate this principle, it will be very difficult for the organization to achieve the objective. तो कहते हैं कि अगर हम अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ऊपर रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो नो डाउट इन शॉर्ट रन यू विल गेट द बेनिफिट, बट इन लॉन्ग रन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेल्स, देन अल्टीमेटली they will firstly fire the employees from the organization. So first of all you have to take organizational interest first, and then you have to take after organizational interest to individual interest. So it means that you should not think about yourself first, you will have to think about the organizational first. So if we will follow this principle, your organizational objective will be achieved. तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा. अगर तुम इसी प्रिंसिपल को वायलेट करोगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. सो इट मीन्स यानी कि तुम्हारे इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट, इंडिविजुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशनल के बेनिफिट के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू रेम्यूनरेशन और टू एम्प्लॉयज़. यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स. अगर आप उससे 6 घंटे काम करवा के और उसको तुम 10,000 रुपये दे रहे हो, देन दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड, दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड. तो वो कहते हैं कि रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर. तो इफ़ वी विल नॉट पे देम कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वेजेस, देन अल्टीमेटली दे विल नॉट बी satisfied with the organization and they will start leaving the organization. So if we will follow this principle in our organization, so there will be development of the superior of dedication among employees. तो अगर अपन उनको फेयरली पे करेंगे, दे विल हैव अ स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन, वो डेडिकेटेडली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे. If we will violate this principle, then there will be increase in the labor turnover rate. ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ जाना शुरू कर देंगे. Next one, another is principle of centralization and decentralization. According to this principle, there should be balance between centralization and decentralization. Centralization का मतलब क्या होता है, that power in the few hands. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन द मोर हैंड्स. तो वो कहते हैं कि ना तो आपको कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करनी है और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करनी है. देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. वो कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इंपॉर्टेंट इश्यूज शुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड रेगुलर वर्क शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड. जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, दैट शुड बी रिटेन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और जो रेगुलर वर्क है दैट इज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड अमंग मिडल लेवल एंड द लोअर लेवल.
What will happen if we will follow this principle? Better and quick decisions are possible. If we will completely decentralized or completely centralized, then we will not get a benefit in. तो अगर अपन कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज करते हैं और कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज करते हैं तो वी विल गेट अ बेटर एंड द क्विक डिसीजन. वायलेटिंग इफेक्ट, वो कहते हैं कि अगर अपन हर एक चीज़ खुद ही करनी शुरू कर देंगे तो उससे अननेसेसरली जो वर्कलोड है सुपीरियर का वो इंक्रीज हो जाएगा. इन केस अगर अपन डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो वी कैन से तो सबॉर्डिनेट्स का जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो बैलेंस होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है दैट शुड बी रिटेन्ड विद द टॉप लेवल, ताकि उनका भी वर्कलोड ज़्यादा ना हो और डिसेंट्रलाइजेशन सारा करके कि उनका भी वर्कलोड ना बढ़ाया जाए. तो वो कहते हैं कि वर्कलोड में भी बैलेंस होना चाहिए. तो वर्कलोड में बैलेंस कब होएगा? दैन व्हेन वी हैव अ complete balance between centralization and decentralization. Then another one is principle of scalar chain. Principle of scalar chain, organization should have a chain of communication from top to bottom and vice versa. Means if F wants to communicate with N, then F will communicate with E will communicate with D will communicate with C will communicate with B will communicate with A will communicate with L will communicate with M will communicate with N. So there should be proper chain. तो वो कहते हैं कि इट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स. प्रॉपर चैनल होना चाहिए कम्युनिकेशन का. गैंग प्लैंक कैन बी यूज इन केस ऑफ emergency to avoid delay in communication. So if E wants to communicate with O, they can directly form the gang plank. And it can be used in case of emergency. तो कहते हैं कि अगर अपन इस प्रिंसिपल को मान के चलेंगे देयर विल बी बेटर रिलेशन बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी. ई डी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज दे आर रेस्पेक्टिंग डी. देन तो वायलेटिंग इफेक्ट, अगर अपन वी कैन से वायलेट करेंगे तो डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन. So in today's video we have discussed 5 principles of management, and please watch this video very carefully, and if you have any query I will sort out your query in next Google Meet session. Thanks and have a nice day.